With my humble regards, may I tell you, sir, Whatever they have pointed out, my and my opponent lawyers raised, that. sir, that is not correct. That is not correct, sir. भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य की सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खड़े होकर के दलील दे रही है बतौर वकील। और ये हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रही है। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी ने, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक याचिका डाली थी। उस याचिका में आज वो खुद पेश हुई हैं और जो जज थे, 3 जजों की बेंच थी, 3 जजों की बेंच के सामने उन्होंने खुद दलीलें दी हैं। और ये पहली बार हुआ है। उनके पास लॉ की डिग्री भी है। अदालत में आज क्या कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या क्या दलीलें रखी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद क्या कहा है, ये हमारे साथी उपेंद्र बताएंगे। सबसे पहले बताइए तो कोर्ट रूम के अंदर का माहौल कैसा है? देखिए, कोर्ट रूम के अंदर का माहौल बड़ा दिलचस्प था। आप देखेंगे पूरे वीडियो, हम आप दर्शकों को भी दिखाएंगे कि चीफ जस्टिस कुछ बोल रहे थे तो ममता बनर्जी कर रहे थे कि सबमिशन मिलाओ रुक जाइए। तो उनके जो पास में वकील थे वो कह रहे थे कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बोली जा रही थी। हालांकि वो चूँकि पॉलिटिकल हैं तो अपना जो उनका एक फ्लो है वाला वो उसमें बोलती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ पहले की अपेक्षा ये भी देखा गया कि पहले क्या होता है, चीफ जस्टिस रोक देते थे, अगर डांट भी देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस भी आराम से सुन रहे थे। तीनों जजों की बेंच थी चीफ जस्टिस के नेतृत्व में। Respected Chief Justice, sir, Not that I am been imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only, sir, my submission, sir. Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she's change her title? Why she's using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. Can't be. Yes, sir, they have done it, sir. That's why we are. Now, That's sir, why we only I just want to, sir. Number 2, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. Their name also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated, and they say it is the discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? Number 2, sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no, on with Aadhaar card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died, and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died, and also more than 150 people died, and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, Unless it is there, because of Bengal is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? in cooperation.
They say Why not Northeastern? मामला हुआ एसआईआर के, जैसा आपने कहा एसआईआर के मुद्दे पे ममता बनर्जी ने बाकायदे कहा, और एक बड़ा दिलचस्प कहा, ममता बनर्जी ने फ्लो में कहा कि चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, फिर करेगी माफ़ी चाहती हूँ मिलाट। व्हाट्सएप आयोग, चुनाव आयोग ने, को उन्होंने व्हाट्सएप आयोग कहा है। सोचिए, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नहीं व्हाट्सएप आयोग है। और उन्होंने एक बात कहा कि आप देखिए कि मैं इसलिए मुझे आना पड़ा क्योंकि वकील तब लड़ते हैं जब हम मुकदमे हार जाते हैं, मुकदमे हारने के लिए वकील लड़ते हैं। ऐसे वक्त में मैं आई हूँ कि मुकदमा ना हारूं, क्योंकि दरवाजे के पीछे से न्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि सामने से हो। अब ज़रूरत क्यों पड़ रही है एसआईआर की? आप सोचिए कि आपको जो काम 24 महीने का है आप 4 महीने में करा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब लोग फसल कटने वाली है, त्योहार है और ऐसी चीज़ें हैं, उन्होंने एक दो चीज़ें भी दिखाई कि भाई किस तरीके से नाम काटे गए। उन्होंने पेश किया चीफ जस्टिस के सामने। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि दत्ता में कोई डीयू लगाता है, कोई डीए लगाता है, इस आधार पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुमति लेने के बाद जो बंगला अखबार है उनकी कुछ कतरने भी दिखाई, तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जैसे एक बात है, अंडरलाइन करते हैं कि पहली बार कोई सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ बतौर वकील। पहली दलील जो ममता बनर्जी ने दी वो ये दी, जहां तक मुझे पता है, कि भाई हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम आपके पास पहुंचे और इसलिए मैं खुद पेश हो रही हूं, अब न्याय करिए। उनकी जो दलीलें थी उस पे जजों का क्या रिएक्शन था? नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को, 9 फरवरी को बुलाया है कि जो कंसर्न है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एज ए पार्टी के तौर पे नहीं आई हूँ और ना ही मैं व्यक्तिगत तौर पे आई हूँ, मैं एक आम नागरिक के लिहाज से यहाँ आई हूँ। मुझे पार्टी नहीं बचानी है, मुझे अपनी नहीं बचानी है, मैं एक आम आदमी के ज़रिए कि जो आम आदमी का दर्द है मैं वो समझने आई हूँ। और मैं चूँकि पश्चिम बंगाल से हूँ, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल से नहीं हैं, आप हैं पश्चिम बंगाल से। तो उसी पे बताया ममता बनर्जी कि किन किन चीज़ों को लेके ये नाम काटे गए हैं और 3.5 करोड़ लोगों को कैसे नोटिस भेजा गया है ऐसे वक्त में जब लोग वहाँ नहीं हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई शिफ्ट कर गया, उन्होंने उदाहरण दिया, कोई गरीब के पास, कोई गरीब ने बहुत मेहनत से कमाई करके एक अपार्टमेंट ले लिया, वहाँ शिफ्ट हो गया, अब वो वहाँ नहीं है तो नोटिस वहाँ जा रहा है, ना कि दूसरे जगह जा रहा है। दूसरा, किसी की बेटी की शादी हो गई, उस बेटी ने अपना जो सरनेम था उसको हटा के पति का सरनेम ले लिया, उसके आधार पर नाम काट दिए जा रहे हैं। तो ऐसे 3.5 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। आप सोच बताइए, उन्होंने टैगोर का उदाहरण दिया कि आप सोचिए कि टैगोर, चाहे आप देखिए कि जो अर्थशास्त्री थे उनको नोटिस मिला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, अमर्त्य सेन, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमको तो पता ही नहीं है कि आज भी टैगोर कैसे लिखा जाता है। तब ममता बनर्जी ने कहा कि आपको मैं दिखाती हूँ जो पश्चिम बंगाल के मोस्ट अखबार हैं, मैं उनकी कतरें अगर आप कहिए तो मैं फोटो पेश कर रही हूँ आपके सामने। तब ममता बनर्जी ने कहा ये चीजें हुई। लेकिन आप देखिए इस पे हाँ, आप बोलिए कंप्लीट करिए। हाँ, तो आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री आके कैसे लड़ रही हैं। आप सोचिए, ये हम पहली बार देख रहे हैं। हमने बिहार में भी एसआईआर देखा, वहां भी लड़ाइयाँ हुई, उनके प्रतिनिधि सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन खुद आकर के मोर्चा संभालना। और ममता बनर्जी का ये तरीका है कि वो सड़क से लेकर के, और अब तो ये कहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक में झंडा गाड़ देती हैं और अपनी दलीलें देती हैं, और ये उनकी बहादुरी है और इसकी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ममता बनर्जी जब ये दलीलें दे रही थी, जब ये सुन रहे थे, 3 जजों की बेंच थी, नोटिस जारी कर दिया गया है, अगली सुनवाई पे क्या होगा वो आगे बात करेंगे, लेकिन इन दलीलों के बीच में चुनाव आयोग की तरफ से जो पेश हुए थे, मेरे ख्याल से तुषार मेहता पेश हुए होंगे। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ही पेश होते हैं। उनकी क्या दलीलें रही? सॉलिसिटर जनरल भी यही अपोज कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, जिनको आप ही के निर्देश के अनुसार पर हमने नोटिस जारी किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि भाई जिनके आप नाम काटे हैं उनको नोटिस जारी करिए। लेकिन अब इस पे ममता बनर्जी की तरफ से वकील जो हैं उन्होंने कहा कि आपने, ठीक है आपने नोटिस जारी कर दिए, लेकिन आपने उसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि किस लिए आपने, किस आधार पे उनका नाम हटाया है। अगर आपने कहा होता कि दत्ता के नाम पे डीयू आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप बताओ, फिर उस हिसाब से आदमी जाए। ऐसे वक्त में कि भाई अब ममता बनर्जी ने यही गिनाया कि आने वाला है त्यौहार में लोग, फसल कटने वाली है, लोग घरों को अपने शिफ्ट हो गए हैं, कहीं दूसरे जगह हैं, कोई कमाई के लिए दूसरी जगह चला गया है, चुनाव के वक्त
वापस आता है, वोट देता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, वो कैसे नोटिस सर्व करेगा? शायद उन्होंने ये भी तर्क दिया है क्या कोर्ट के अंदर, मैं कहीं पढ़ रहा था, आप मुझे कंफर्म करेंगे कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, असम में नहीं करवाया जा रहा है, वो उन्होंने साफ कहा कि आप देखिए कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, असम में एसआईआर क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है, वहाँ सिर्फ इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है वहाँ असम में। और ये चिंता पहले भी जताई जा चुकी थी कि भाई आप देखिए कि जो स्टेट जहाँ चुनाव हुए हैं उन स्टेटों में क्यों नहीं हुआ, जैसे बिहार में हो रहा था, तो ये सवाल हुआ कि असम में आप क्यों नहीं कराया, असम में भी चुनाव है, आप पश्चिम बंगाल में क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यूपी में, प्रदेश में भी करा रहे हैं। यूपी में इसलिए, तो यूपी में अभी 2027 में चुनाव है, तो यूपी अखिलेश यादव खुद सवाल कर रहे हैं कि फॉर्म 7 का गलत उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि हिंदू अखबार जो सबसे भारत का प्रोमिनेंट अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट भी छपी थी कि राजस्थान में एक व्यक्ति ने 70 लोगों का नाम कटवा दिया फॉर्म 7 से। एकदम सामने रिपोर्ट है कि आप भाई फॉर्म 7 का गलत उपयोग हो रहा है, आप किस आधार पे एक व्यक्ति के इशारे पे आप 70 वोट काट रहे कुल हैं? मिलाकर के अगर आप देखें तो देश की 2 संस्थाएं, मतलब चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंची हैं दलील देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी अपनी दलीलों के बीच में चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कहती है, और ये बहुत खतरनाक है। मतलब लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर भरोसे का डगमगाना अपने आप में बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, लोग कहे, देखिए तुलनात्मक रूप से लोग कहने ही लगे हैं। समस्या ये है कि सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव आयोग पे कोई विश्वास नहीं। और सोचिए अगर 140 करोड़ की जनसंख्या में कोई पार्टी अगर आती है तो 32% के वोट के, बाकी तो जो 60% वोट है वो विपक्ष के ही वोट है। तो आप सोचिए कि अगर डगमगाता है विश्वास चुनाव आयोग से, जिस पे निष्पक्ष होने का, जिस पे इंडिपेंडेंट बॉडी होने का और लोकतंत्र बहाल करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी कहती हैं कि हम 6 चिट्ठियाँ लिखते हैं, एक चिट्ठी का भी जवाब नहीं आता है, तो फिर ये सवाल उठेगा कि डेमोक्रेसी फिर और कैसे मजबूत होगी? तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बतौर वकील पेश हुई। उन्होंने जो दलीलें दी वो हमने आपको बताया, उन दलीलों के पीछे जो कारण, जो वजह रही वो हमने आपको बताया। हमने कोशिश की कि कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ आपको बताएं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है। चुनाव आयोग पर जो ये बार बार सवाल उठ रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। अगले सुनवाई पर भी हमारे इस मुद्दे पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।